Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about functioning of kidney and osmoregulatory function of kidney. First we will discuss about functioning of kidney. Kidney perform their function in 3 steps, in which first step is pressure filtration, which takes place in renal corpuscle. Second step is selective reabsorption, which takes place in renal tubule, and the last step is tubular secretion that takes place in renal tubule. इन स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं क्लास. The main function of kidney is urine formation, which takes place in 3 steps. The first step is pressure filtration. When blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to glomerulus. The pressure of blood is very high, and so most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of glomerulus capillaries. This material passes into the Bowman's capsule and is now called glomerulus filtrate. गुर्दे का अहम काम जो है वो यूरिन बनाना है, और गुर्दा ये काम जो है 3 मराहल में मुकम्मल करता है, जिसमें पहला मरहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन. जब रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए खून गुर्दों में दाखिल होता है तो ये बहुत से आर्ट्रियोल्स और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है. यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और खून का ज़्यादातर पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया यहाँ प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, और ये सारा मवाद बोमैन्स कैप्सूल में चला जाता है, और अब इस सारे मवाद को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं. ये साइड बॉक्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें क्लास, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू भी. ब्लड सेल्स एंड proteins are not filtered through the glomerulus capillaries because they are relatively larger in size. glomerulus की कैपिलरीज से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. सेकेंड स्टेप को डिस्कस करते हैं. द सेकेंड स्टेप is the selective reabsorption. In this step, about 99% of the glomerulus filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. We already know that class. Osmosis is the transport of water molecule from a dilute solution to a concentrated solution across semi-permeable membrane, and diffusion is the movement of molecule from higher concentration to lower concentration, and active transport is the movement of molecule from lower concentration to higher concentration, and in this process energy is utilized in the form of ATP. Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Here salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. The descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salts. The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into the blood. डायग्राम में देखें क्लास, नेफ्रॉन के अराउंड ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का 99% मटेरियल को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से दूसरे मरहले का नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ये रीएब्जॉर्प्शन जो है ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है. इस नेफ्रॉन के जो पहले बलदार हिस्सा है इसमें ग्लूकोज और ज़्यादातर पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती है. इसी तरह लूप ऑफ हैनले की नीचे जाती नाली में पानी, जबकि ऊपर जाती नाली में नमकियात को वापस जज़ब किया जाता है, और रेनल ट्यूब्यूल की आखिरी बलदार नाली में दोबारा से पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती है. तीसरे मरहले को डिस्कस करते हैं. द थर्ड स्टेप इज़ द ट्यूबुलर सेक्रीशन. डिफरेंट आइंस, कैरोटीनाइन, यूरिया एटसेट्रा आर secreted from blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at a normal pH that is 7.35 to 7.45. तीसरा मरहला ट्यूब्यूल से सक्रीशन बनाकर उसे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर दाखिल करना है, यानी तीसरे मरहले का नाम है ट्यूबुलर सक्रीशन. इसमें बहुत से आयन, कैरोटीन आयन, यूरिया वगैरह को सक्रीशन बनाकर खून से रेनल ट्यूब्यूल में दाखिल किया जाता है, और इसका बुनियादी मकसद ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखना है जो कि 7.35 से 7.45. ऊपर साइड बॉक्स देखें जिसमें एक एमसीयू की बात है. एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्ट्रेटेड वॉल्यूम. The typical volume of urine produced by an average adult is around 1.4 liters per day. इस आखिरी मरहले के बाद जो यूरिन बनता है उसका वॉल्यूम है 1%, और एक
जो मैच्योर पर्सन होता है एक दिन के अंदर उसके अंदर जो यूरिन बनता है वो तकरीबन 1.4 लीटर तक बनता है। ये टेबल देखें क्लास, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन जिसमें ब्लड की परसेंटेज है 95% और अदर यूरिया और डिफरेंट आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है। इस टेबल में से आपसे MCQ पूछा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, हमने चैप्टर के स्टार्ट में ऑस्मोरेगुलेशन को पहले भी डिस्कस किया है। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड फ्लूइड, इन बॉडी फ्लूइड दैट इज़ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। अगेन हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। किडनी प्ले important role in osmoregulation by regulating the water contents into the blood. ऑस्मोरेगुलेशन ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना है और ये काम हमारी बॉडी में किडनीज़ करती हैं। डैट मीन्स कि किडनीज़ ये ऑस्मोरेगुलेशन का रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा किडनीज़ जो है वो दो तरह से यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, उन दोनों को डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, किडनी फॉर्म्स dilute hypotonic urine. For this purpose, kidney filter more water from glomerulus capillaries into Bowman's capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluid to normal. जब हमारी बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा पानी मौजूद होता है तो किडनी जो है वो डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक यूरिन बनाती हैं। इस मकसद के लिए जो किडनीज़ हैं वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बोमैन्स कैप्सूल में ज़्यादा पानी फ़िल्टर करती हैं। इस तरह कम पानी को ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है जिससे जो यूरिन बनता है वो डाइल्यूट बनता है, जिससे जिस्म में फ्लूइड जिस्म के फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखा जाता है। व्हेन there is shortage of water in body fluid, kidneys filter less water from glomerulus capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. Less filtration and more reabsorption produce small amount of or concentrated hypertonic urine. It increases the volume of body fluid to normal. This whole process is under hormonal control. जब जिस्मानी फ्लूइड में पानी की कमी हो तो गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से कम पानी फ़िल्टर करते हैं और पानी का वापसी इंतज़ाम जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कम यूरिन बनता है और गाढ़ा यानी हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। और ये सारा का सारा काम जो है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।